Welcome again, once again to the fifth dimension. I am your host Pankaj Nagalia. I am an architect by profession, and today we have a special guest with us, Mr. Pramod Kanogia, who is into loans. He gives you loans for your property. You can take care of your property in a very well manner. You get it financed. You won't have hassles regarding the construction of your building. Welcome to the show, Pramodji. Thank you, Pankaj. Pramodji, tell something about your journey to get into the property loans business, and Okay, please tell us something about okay. you. First of all, thank you, Pankaj, for inviting me to this podcast. I'm very happy to be here. My journey to this is because I am a thorough professional since the beginning of my career. So I did my chartered accountancy in way back 1992. I qualified, and after that, I've been associated with various banks and some telecom companies. So it was a natural flow to start in a finance world too, the business of providing the funds. So I have worked with a lot of NBFCs, banks, and companies, and I have been in this business for almost like 20 years now, and providing finance to the world. This is what I have been doing it. What are the people facing problems in life with respect to the finance, and how you are taking care of those issues? Well, I will start with this a quote of Warren Buffett, which says that money is not everything, but make sure that you earn a lot of money before you say this nonsense. So money is everything, and I am to the business of loans, and I am sure that money is a problem of every human being. किसी के पास जितना भी है वो कम ही है, and everybody wants to grow it. So I'm into the business of this thing and funds providing, and fund is always a problem. So अगर आपका फंड सर्वाइवल के लिए चाहिए तो भी आपको प्रॉब्लम है, और आपको ग्रोथ के लिए चाहिए तो भी फंड्स चाहिए आपको. सो द मेन प्रॉब्लम इज, अगर आपका फंड्स यूटिलाइजेशन ग्रोथ के लिए हो रहा है तो दैट इज़ अ गुड फंड टेकन, दैट इज़ अ गुड लोन. एंड इफ द फंड इज यूज्ड फॉर द purpose of your survival or to meet your expenses, that is not a good loan. So I am to the business, although need may be for the survival or the growth, but I can help both the ways to provide the fund. And the company brand is Loan Money, so which says that clearly that the funny fund provided is for the loans only. So it has to be repaid back with interest also. Yeah, well said. If we talk in terms of property, what are the various loans available for the property, like for construction, loan against Yes, I property, will and take that. so on and so forth? यस. सो जैसे प्रॉपर्टी के लिए बात करें तो हम लोग प्रॉपर्टी के लोन्स के अंदर, जब किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, बनानी है, तो उसको लोन चाहिए. तो फर्स्ट टाइम इज बाइंग अ प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी जो होती है वो, इट कैन बी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इट कैन बी अ प्लॉट, इट कैन बी अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, इट कैन बी अ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए अलग तरीके के लोन्स होते हैं, और उसके सारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं उसके हिसाब से. फिर होता है कि आपके पास में अगर प्लॉट है उस पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो फिर वो अलग लोन चला जाता है, अलग लोन हो जाता है. थर्ड होता है जो आपके पास में प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके नाम पे ही है, आपके ओनरशिप है, मगर आपको उस प्रॉपर्टी को लिवरेजिंग करनी है, जिससे कि आपके पास में फंड्स फ्लो हो सके, कैश लिक्विडिटी आ सके, और उसको आप अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लगा सकें. तो प्रॉपर्टी के अंदर ये तीन तरीके की लोन होते हैं. एक फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी, सेकेंड इज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज़ लिवरेजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी. How do you work out the eligibility of loan amount for an individual as far as the property is concerned? Loan eligibility is depending upon फोर फैक्टर्स बेसिकली. वन इज़ द कौन से बैंक या इंस्टीट्यूशन से आप बात कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ टेकिंग द लोन्स. क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, पीछे उसने कितने लोन्स लिए थे, उसकी टाइमली पेमेंट्स हुई हैं, नहीं हुई हैं, क्या इश्यूज़ रहे हैं. थर्ड इज़ अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स ऑफ द होल सिस्टम, कि हमारे हर एक बैंक के हर तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं. और ये कहा जाता है कि बैंक कागज़ खाता है और नोट बना के देता है. तो आपको जितने भी पेपर्स वर्क आपका जितना अच्छा होगा, उतना आपको बैंक कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि बैंक को पेपर्स की डॉक्यूमेंटेशन पे ही चीज़ चाहिए. तो एलिजिबिलिटी के लिए हम डिपेंड ये करता है कि पहला ये कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है. अगर वो सिक्योर्ड लोन है तो उसकी एलिजिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कोलेट्रल वैल्यू कितनी रहती है उसके हिसाब से. और सेकेंड इज़ रीपेमेंट कैपेसिटी. तो बैंक को जो इंटरेस्ट होता है वो होता है सिंपल सा अपने ब्याज में. तो बैंक को अपना इंटरेस्ट चाहिए. अब इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, अपने प्रिंसिपल को सिक्योर करने के लिए वो कोलेट्रल लेता है. अब नॉर्मली वो देखता क्या है कि अगर आपके पास में
बहुत लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ मैं चीज़ों के अंदर कि एलिजिबिलिटी कैसे निकालता है बैंक। अगर आपके पास में 100 रुपये की आपकी कमाई हो रही है तो बैंक बोलता है उसके अंदर कि आपको कम से कम 30 रुपये तो आपको अपने घर के खर्चे के लिए चाहिए, आपको जीवन बनाने के लिए चाहिए, 10-15 रुपये आपको इमरजेंसी के लिए चाहिए पड़ते हैं। तो आपकी मान के चलता है कि 100 रुपये में 40-45 रुपये तो आपके खर्च हो जाएंगे, 55 रुपये बच गए। 55 रुपये के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनाता है कि आप कितना लोन ले सकते हैं। ओके। अब वो डिपेंड ये करता है कि अगर आपने सिक्योरिटी दे दी तो बैंक बोलेगा 15 साल के लिए लोन चला जाएगा, तो आपको लोन अमाउंट बड़ा हो जाता है। आप बोले नहीं बस में कोई कोलेटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको बैंक 3 साल के लिए मैक्सिमम लोन देगा या 4 साल के लिए देगा। तो आपकी पर मंथ की ईएमआई की रिपेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है उस तरीके से, तो आपको लोन छोटा मिलेगा, कम समय के लिए मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज टू। Any advice you will give to the customers while taking loans, because it's a, as they say, finance is a double-edged sword. बिल्कुल ठीक बात है ये। तो पहले हम ये समझते हैं कि डबल एज सोड क्या है। डबल एज सोड है, जैसे मैंने बताया आपको कि इसके ऊपर की धार के अंदर ग्रोथ है। अगर आपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया है तो आपके फ़ायदे के लिए मेरा है। दूसरा, अगर आपने अपने एक्सपेंसेस के लिए किया हुआ है, जो कि आपके खर्चे करने चाहिए थे, उसके लिए आपने लोन लिया हुआ है, तो आपके पहले ही आप माइनस में चल रहे हैं तभी आपने लोन लिया है, और उसके बाद में आपने जो लोन ले लिया उसकी भी रीपेमेंट कैपेसिटी के लिए आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, तो आप फंस जाते हो। तो डबल एज ही हो गया इसके अंदर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको किसी को लोन्स के लिए जाना चाहता है, जब भी लोन के जाना चाहे, तो ये डिसाइड करें कि मुझे लोन सर्वाइवल के लिए चाहिए या ग्रोथ के लिए चाहिए। ग्रोथ के लिए चाहिए, बिंदास जाके शुरू करेगा, अपना लोन लेना शुरू करेगा। उसके अंदर उसको ये देखना है कि मेरी मंथली कितनी कैपेसिटी है लोन पे करने की, उसके हिसाब से अपना लोन लेके चल सकता है। तो हमें वो देख के चलना है कि कितनी कैपेसिटी के हिसाब से है। और बात आएगी कि हमें जो लोन लेने जा रहा है पहली बारी, उसको ये चीज़ है कि जब ये ना डिसाइड करे कि मुझे आज लोन चाहिए और आज ही मैं डॉक्यूमेंटेशन पूरे करूँगा, तो कभी नहीं हो पाता है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, दैट इज़ बेसिकली आपका जो है, अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो आपको अपने बैलेंस शीट, फाइनेंशियल सही तरीके से ड्रॉ होने चाहिए, बैलेंस शीट सही तरीके से होनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आईटीआर फाइल होनी चाहिए। और जब बात करेंगे सैलरीड आप होना चाहिए, तो आपके सैलरी के अंदर पीछे का आपका सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16, कंपनी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको ये सब चीज़ें पहले से प्लान कर रखनी चाहिए, और इनफैक्ट आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि फाइनेंस की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो यू शुड नॉट वेट, क्योंकि बैंक का एक ये भी दूसरी भी कहावत कही जाती है कि जब सनशाइन होता है तब तो बैंक अम्ब्रेला दे देता है, जैसी बारिश होती है बैंक अपना अम्ब्रेला खींच लेता है। तो जब आपके पास मुसीबत आएगी तो बैंक बोलेगा मैं क्यों साथ दूँ, मेरा पैसा भी डूब सकता है। ये भी कहा जाता है पैसा उसको ही मिलता है जिसके पास पैसा होता है। नॉन नेचुरल है। बैंक को ये चाहिए कि अब जब आपके पास में पैसा है और आपकी ग्रोथ होने वाली है और बैंक को नज़र आता है कि बिल्कुल ठीक चलेगा, तो बैंक को ब्याज कमाना है, तो दे विल बी वेरी कंफर्टेबल गिविंग इट टू यू लोन। Pramod ji, you are in a finance sector. You are doing financing for the people. What is your uniqueness you would like to share? सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि आई कम जो फाइनेंस वर्ल्ड है ये लोन का, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉलेज। और आई हैव बीन अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैव अ टीम ऑफ अराउंड 40 पीपल, सो दे हैव बीन इन दिस बिजनेस ओवर 10 years टाइम पीरियड। सो लाइक फाइनेंस के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी पैरामीटर होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, एक बैंक पार्ट होता है, एक फाइनेंशियल पार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो लोन करने के लिए बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, आपसे कागज़ लेके आगे बैंक में दे देंगे। उनको नहीं पता कागज़ कैसे देखना है, उनको नहीं पता बैंक की पॉलिसीज़ क्या है, सिस्टम क्या है। वो आपकी फाइल में तुक्का मारते रहेंगे, और तुक्का मारेंगे तो आपकी फाइल ख़राब होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। आपकी फाइल बैंकर देखता है कि इंक्वायरीज आ रखी, तो दे विल नॉट एंटरटेन यू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज होना। तो आई कम फ्रॉम बैकग्राउंड, सो आई कैन एश्योर दैट वी हैव कॉम्पिटेंस एंड वी एक्सपीरियंस टू डू दैट। सेकंड थिंग मैं थोड़ा सा और इसमें एलॉबरेट करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें और भी हैं। यूनिकनेस इसके अंदर ये है कि हमारे पास में हम एक कंसल्टेंट्स हैं, तो हम लोग बैंक नहीं है, तो हम लोग बैंक की तरीके से अपना आपके पास में लोन नहीं देना चाहते हैं कि हम आपको कोई सा भी लोन जो हमें प्रोडक्ट में वो नहीं है। मैं जाऊँगा कस्टमर को समझूंगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, उसका स्वीट स्पॉट क्या है, उसके हिसाब से कौन सा बैंक उसके लिए सूट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जिसको लोन चाहिए होता है वो अपने बैंक के पास जाता है, बोलता है मुझे लोन चाहिए, और बैंक के पास जो प्रोडक्ट होता है उसको चेप देता है। वो बैंक लेना पड़ता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास में लिंक नहीं है कि कौन से बैंक के पास जाए। मेरे पास आता है, मेरे पास 40 बैंक NBFCs हैं, तो मैं उसको उन 40 बैंक NBFC से जो बेस्ट सूट करता है उसको दे सकता हूँ। और हमारे पास में जो है रोज़ का हम लोग एटलीस्ट 10 से 12 लोन्स करते हैं, तो हमारे पास में बैंक्स की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। तो इसके अंदर हम लोग बैंक्स के अंदर टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट, पैसे की वैल्यू आज टाइम के हिसाब से होती है। अगर वही पैसा आपको टाइम से मिल जाए तो उसकी वैल्यू, अगर वही
3 महीने के बाद मिलता है तो मनी बिकम्स यूजलेस टू यू। तो टाइमलीनेस हम लोग दे सकते हैं, हम लोग उसको बेस्ट डील दे सकते हैं, क्योंकि जो रेट आपको, मैं तो 100% कैमरे में देख के कह सकता हूँ, आप लोगों के सामने कह सकता हूँ कि मैं अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, जो चार्जेस दूंगा, वो कोई ब्रांच नहीं दे सकती है बैंक के अंदर, क्योंकि ब्रांच के अंदर उनको नॉलेज नहीं होती, उनके एक्सपीरियंसेस नहीं होते कि वो आपको चीज़ दे सकें। तो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दूंगा वो मच बेटर देन बैंक दूंगा, लीस्ट टाइम के अंदर दूंगा, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दूंगा। और मैं जब किसी क्लाइंट के साथ जुड़ता हूँ तो मेरे को पता है कि मैं इस बिज़नेस में हूँ और मुझे अगले 30 साल तक यही बिज़नेस करना है, तो मैं क्लाइंट से बच नहीं सकता हूँ। एक बैंक का एम्प्लॉय आएगा, आपसे कागज़ लेगा, लोन लेके चला जाएगा, तो आप देखें 1 साल में दूसरे बैंक में नौकरी कर रहा है और आपको फिर वो वहाँ लेके जा रहा है। Right. तो आप हिलते रहेंगे उस हिसाब से। तो आपके एक्सपर्टाइज जो है हमारे पास में, वो चीज़ रिलेशनशिप बिल्डिंग वाली नहीं आ पाती है। Coming हम to लोग the पूरे करते हैं। logistic part, how do you deliver service? Do you give home service? मेरे पास में जैसे मैंने आपको बताया, बस 40 लोगों की टीम है। तो आप जब मुझसे बात करेंगे कि मुझे लोन चाहिए, तो आई विल कम, और माय पार्टनर्स, जैसे कि मेरे पास में 2 पार्टनर्स और हैं जो कि एक अलग अलग डिविजन्स हैं। सो वो लोग, अगर सिक्योर्ड लोन होगा तो वो देखने आएगा, अनसिक्योर्ड है तो वो देखने आएगा, आपसे मिलेंगे उसके अंदर, और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे। उसके बाद हम समझने के बाद में जब आपकी चीज़, हम लोग प्रपोजल देंगे आपको, वो प्रपोजल आप एक्सेप्ट करेंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। हाँ, मुझे ये अमाउंट चाहिए, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ये चार्जेस रहेंगे, ये टेन्योर रहेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे। जब आप इन टोटली एग्री करोगे तो देन वी ऑन बोर्ड द केसेस, फिर हम लोग से काम शुरू करते हैं। और उसके बाद भी जो हम लोग आप कमिट करते हैं वो पूरा करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में। कम्युनिकेशन हमारा हमेशा ऑन रहता है आपके साथ में, कि हम आपको बताते चले जाते हैं कि आपका लोन किस स्टेज में पहुंचा हुआ है। और बैंक के अंदर जब हम लोग डील करते हैं तो बैंक के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अलग चलती है, आपकी वेरिफिकेशन अलग चलती है, लीगल क्वेरीज अलग चलती हैं, आपकी सेल्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चलती है। तो वी कोऑर्डिनेट ऑल द थिंग्स टुगेदर। Thank you, Pranod ji. Pramod Konodia ji, he is into the loans. If you have any requirement for property loans, do get in touch with him. Thank you. थैंक यू पंकज, थैंक यू फॉर बीइंग। Thank you.